کے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان ضمنی الیکشن کی کیمپین کے لیے لودھنا پہنچ گئے۔ جلسہ عام سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ الیکشن میں بے ایمانی کی جائے گی، آپ تمام ووٹرز نے پہرا دینا ہے، بے ایمانی کے باوجود جیتیں گے اور ملک کو حقیقی آزادی دلوائیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن بھی چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مزید جانیں گے محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین عمران خان ضمنی الیکشن میں فتح کے لیے متحرک۔ لودھنا میں جلسہ عام سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی کا پلان ہے، الیکشن کمیشن اور انتظامیہ ساتھ ملی ہوئی ہے، آپ ووٹرز نے معاملہ سنبھالنا ہے۔ ہمارا مقابلہ ان چوروں کے ساتھ ہے، یہ پیسے چلا رہے ہیں، ان سے پیسے لے لو، ووٹ بلہ پہ ڈالنا، ان چوروں کے ساتھ ہے۔ پھر وہ الیکشن کمشنر، وہ جو جا کے مریم کے اور حمزہ کے قدموں میں بیٹھ کے پلان کر رہا ہے کہ الیکشن کیسے انہوں نے جیتنی ہے، کیونکہ ایمانداری سے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ پیسے بنا سکے، نہ بزنس چلی، نہ پالیٹکس کی، نہ الیکشن لڑی۔ اور جب نواز شریف کرکٹ کھیلتا تھا باغ جناح میں تو اپنا پیر کھڑا کر کے کرتا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف مہنگائی کا نعرہ مارنے والوں نے اقتدار میں آ کر 1100 ارب روپے کی چوری معاف کروائی، اپنے آپ کو این آر او دینے والے حکمرانوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یہ آپ کی جنگ ہے، یہ چور اوپر رہ گئے، قوم کا وہ حال ہونے جا رہا ہے جو سری لنکا کا ہوا ہے۔ سری لنکا کے اندر ہوا کیا کہ ان کے جو اوپر سربراہ تھے وہ بھی خاندان تھا، یہاں بھی دو خاندانوں کے نیچے ہمارا ملک 30 سال سے یہ دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ 30 سال سے ملک کو مقروض کر دیا ہے، خود اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں، بچے بھی خربوں پتی بن گئے۔ عمران خان نے عوام سے کہا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، وہاں پر بھی پاکستان کی طرح دو خاندانوں کی حکومت تھی، پاکستان کے لوگ بھی آج چور خاندانوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ منچن آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا، شاہ محمود قریشی نے جلسے سے خطاب کیا، ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اللہ والا جی پائیے نا، کوئی طرف بندہ خدا قوت نظر نہیں آتا، اللہ والا جی پا رہے نا، ہاں کیا پاکستان دا مفاد دا کدرے سودا جڑی سانو تھوڑا پریشان کرتی ہے وہ ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ منچن آباد کے لوگوں اسی آ کے کہتے سا کہ یار بالکل بدی ہے، لیکن بہت سارے عوامل نے اسی تے پھر بھی ٹکے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے اپنی پالیسیاں دے ذریعے، احساس پروگرام دے ذریعے، احساس خود کفالت پروگرام، کامیاب نوجوان، احساس راشن اسکیم اور مختلف اسکالرشپ اسکیم کے ذریعے سبسڈیاں دیتیاں۔ اسی روس گئے، کادر واسطے گئے کہ سستا تیل لے کے آئیے کہ تھوڑے تے جڑا تیل دا پٹرول تے ڈیزل دا بم گریا ہے اس تو تانوں بچائیے۔ اسی روس گئے کہ سستی گیس لے کے آئیے، اسی روس گئے کہ کڑک سستی لے کے آئیے۔ میرے دوستوں اج پاکستان کی پیداوار جڑی کڑک کی ہے، ہم روس سے تیل اور گندم سستے خریدنے جا رہے تھے، کٹ ہے ضرورت تو۔ پچھلے سال جڑی کڑک 1800 روپے من لکھی، اج کڑک کا کی ریٹ ہے 2800 ہے، 2800، یعنی کہ پچھلے سال تو اس سال 1000 روپیہ کڑک کا ریٹ بڑھ گیا۔ یہ دسو اگر کڑک کا ریٹ 1000 بڑھے گا، آٹا سستا ہوئے گا مہنگا ہوئے گا۔ سلطان میں عید قربان کا دوسرا روز بھی جوش و خروش سے منایا گیا، شہری مختلف انداز میں عید سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے، بچوں اور نوجوانوں نے اپنی فیملیز کے ہمراہ عید کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ رپورٹ کریں گے شکیل سلطان۔ شہر اولیاء میں عید کے دوسرے روز بھی شہریوں کا ہلا گلا جاری رہا، شہری مختلف انداز میں عید سے
लुत्फ अंदोज होते नजर आए। बच्चों और नौजवानों ने अपनी फैमिलीज के साथ ईद मनाने के लिए तफरीही मकामात का रुख किया। किला कोहना कासिम बाग पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शहर में कायम आरजी मंडियों में आज भी जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। लोगों ने ईद के दूसरे रोज कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे और सुन्नत इब्राहिमी अदा की। आज ईद का दूसरा दिन है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम गए, पहले ज़ियारत की हमने, तो आज हम रिश्तेदारों के घर जाएंगे, हम बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों का कहना था कि बड़ी ईद पर जी भरकर गोश्त खाया, उसके साथ किले की सैर भी की, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने उनके घर भी गए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद के दूसरे रोज भी मुतहर्रिक है। सुबह 4 बजे से कंपनी की तरफ से शहर भर की सफाई का अमल शुरू है। कंपनी ने ईद के पहले रोज 5733 टन अलाइशें ठिकाने लगाई। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद के दूसरे रोज भी एक्टिव है। सुबह 4 बजे से कंपनी ने शहर भर की सफाई का अमल शुरू कर रखा है। आज का जो चैलेंज है वो पहला ये था फर्स्ट कि सुबह जो है 4 बजे फील्ड में कैसे पहुंचा जाए, जो रात को 10 बजे हम फ्री हुए हैं। तो सुबह हमने खुद जो है जाके वर्कर्स को जगाया और लोगों को बाहर बुलाया, मशीनरी को मूव किया और 4-5 बजे के दरमियान जो है 100% वर्कर और मशीनरी वो इन द फील्ड था और उसका रिजल्ट माशाल्लाह अभी अच्छा आ रहा है। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अमीर हसन का कहना था कि ईद के पहले रोज एमडब्ल्यूएमसी ने 5736 टन अलाइशें ठिकाने लगाई हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार 16 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और शहर भर से 303 जायद शिकायत को हल कर लिया गया है। शपर जो है बायोडिग्रेडेबल वो तकसीम किए हैं और लोगों की शिकायत भी सुनी है। हमारी टीमें फील्ड में रही हैं, पूरी मशीनरी हमारी फील्ड में रही है। उसके अलावा हमारे पास 303 कंप्लेंट्स आई हैं, वो हमने रिड्रेस की हैं। अमीर हसन का मजीद कहना था कि हर सेक्टर में शिकायत सेल लगाए गए हैं। शहरी शिकायत के लिए 1139 पर राब्ता कर सकते हैं। तमाम शहरियों से गुजारिश है कि वो वेस्ट बैग का लाजमी इस्तेमाल करें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। वेलकम बैक। ईद कुर्बान पर शहरियों के लिए रोटी और नान खरीदना भी महंगा पड़ गया। तंदूरी पर रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहीरा तारिक। ईद कुर्बान पर रोटी और नान की कीमतों में इजाफा शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया। तंदूरों पर रोटी और नान की कीमतों में 5 से 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। 10 रुपए वाली रोटी 12 से 15 रुपए में फरोख्त होने लगी। चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। फेस्टिवल पे दूसरे मुल्कों में यही होता है कि तमाम फेस्टिवल पे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब फेस्टिवल कोई भी आता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसलिए ये मसाइल तो हैं हर जगह। नान की कीमत 25 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई। शहरियों का कहना था कि पहले ही महंगाई से परेशान हैं। ईद पर रोटी और नान ज्यादा फरोख्त होती है, इसलिए कीमतें भी कम करनी चाहिए। सादी रोटी 2 रुपए बढ़ाया, खमीरी रोटी 5 रुपए। ये इस वजह से बढ़ाई, 3 दिन डबल चार्जिंग होती है दिहाड़ी। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि ईद के त्यौहार पर इनके अखराजात बढ़ जाते हैं, इसलिए कीमत में इजाफा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी बस अड्डों पर परदेसियों की आमदरफ्त जारी है। कोई ट्रांसपोर्टर से नाला नजर आया तो कोई अपनों के साथ ईद ना मना सकने का गम मनाता नजर आया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुहेब बुखारी। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी परदेसी अपने घरों को वापसी के लिए बेताब नजर आए, जबकि ईद अपने प्यारों के साथ न मना सकने वाले परदेसी अफसुर्दा हैं। टिकट मिलती नहीं है, फिर किराया बहुत ज्यादा, कहते हैं टिकट है नहीं, नखरों से टिकट देते हैं, ना एसी चलता है ना कुछ कर। हमने ईद भी यहाँ पे गुजारी, हम घर भी नहीं जा सके। मुसाफिरों का कहना था कि इस बार बसों के किराए गुज़िश्ता साल की निस्बत 3 गुना ज्यादा हैं, जो कि इनकी पहुंच से बहुत दूर थे। किराए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और गाड़ियों की कंडीशन ऐसी नहीं है कि बंदा इतना किराया बर्दाश्त कर सके। मुसाफिरों ने ट्रांसपोर्टर को भी खूब आड़े हाथों लिया और हुकूमत से फौरी मुतालबा किया कि खुदारा ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ी ईद की बड़ी खुशी पर ताहाल परदेसी ट्रांसपोर्टर से नाला नजर दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई और किरायों से वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने घरों को नहीं जा सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सैयद जुहेब बुखारी, मुल्तान। ईद उल अजहा के दूसरे दिन बकर मंडियों में मंदा दिखाई दिया। व्यापारी ज्यादा जबकि खरीदार कम नजर आए। जानवरों की कीमतों की सूरत हाल जानते हैं मुल्तान से महर इमरान की इस रिपोर्ट में।
ईद के दूसरे रोज भी शहरियों ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। शहरी दूसरे रोज भी कुर्बानी के लिए मनपसंद बकरों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। ईद के दूसरे रोज बकरा मंडी में व्यापारियों की तादाद ज्यादा जबकि खरीदार कम नजर आए। कल मेरे भाई जो कल बहुत मांगा था, आज जो ला रहे हैं 20-25 इस ऊपर नहीं चल रहे। गर्मी इतनी है, कोई इंतहाई गर्मी पड़ रही है। बकरे काफी कम हुए खड़े हैं, कोई आंदा नहीं है। घी दे गए, घी चढ़ाया, हर बला चीनी थी गई, हर चीज दालों थी गई, ये चीज बहुत महंगी है। ईद दूसरे रोज बकरों की कीमतें कम लगने पर व्यापारी चला उठे। इनका कहना था कि शहरी 60,000 रुपए वाले बकरे की कीमत 20,000 रुपए लगा रहे हैं। ईद के पहले रोज से बकरों की कीमतें कम लगने से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। 50,000 का बकरा लेके आए, ये हुण लगता खड़ा 20,000 रुपया, 25,000। असा हुण त्रीजी दिहाड़े थी बैठे हैं, भाई असें घर बनते ईद तक करनी है सर जी। फातिमा जिन्ना हाउसिंग सोसाइटी में कायम बकरा मंडी में व्यापारी अच्छे गाहक की इंतजार में बैठे हैं, जबकि दूसरे रोज बकरे खरीदने के लिए आने वाले शहरियों की तादाद कम रही। कैमरामैन अजीम सागर के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मैपको इंतजामिया की चश्मपोशी और नाअहली। दुनियापुर की बस्ती नूर मोहल्ला माशकियां वाला में शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। इलाके की गलियों में बिजली की लटकती तारें राहगीरों और अहले मोहल्ला के लिए मौत का पैगाम बन गईं। शहर के अक्सर गलियों मोहल्लों में बिजली की नंगी तारें शहरियों के लिए वबाले जान। मैपको इंतजामिया की चश्मपोशी और नाअहली की वजह से बिजली की नंगी तारें जमीन से चंद फुट ऊंचाई पर झूलती नजर आती हैं। लटकती तारों की वजह से किसी भी वक्त जानलेवा हादसा हो सकता है। बिजली भी नहीं पूरी है, तारों के खंबे सारे लमके पे ने। अगले दिन मेरे ख्याल 3-4 महीने हो गए, औरत भी फौत हो गई है इस बिजली की वजह करके। एक बिजली है ही नहीं। बस्ती नूरपीर मोहल्ला माशकियां वाला में गलियां कच्ची हैं। बारिशों के दिनों में लोग दीवार के साथ गुजरते हैं जहां पर बिजली की तारें गुजरती हैं, जो किसी भी वक्त किसी भी नागवार वाक़े का सबब बन सकता है। पहले इलाका का कहना था कि गुज़िश्ता बारिशों में एक खातून करंट लगने से जान की बाजी हार गई थी। उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मैपको के आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन राफरमान अली के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। रहीम यार खान में 2 रोज पहले होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा। खानपुर अड्डा की मसरूफ रोड बारिश के पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गई, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इंतजामिया से फौरी अमली इकदामात की अपील कर दी। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान में 2 रोज पहले की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मसरूफ खानपुर अड्डा रोड बारिश के पानी में डूब गया, जिसके बायस शहरियों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया। ये तो बारिश हुई है, कुदरत की तरफ से हुई है, लेकिन कोई इदारा काम नहीं कर रहा है। जो पानी साफ करने वाले इदारे हैं वो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। मोहल्लों में आप जाके देखें, मोहल्लों में घरों में पानी चला गया है, सामान खराब हो गया है, आने जाने की भी दुश्वारी हो रही है, कोई कारोबार नहीं हो रहा। शहरियों का कहना है कि पानी जमा होने से दुकानें बंद हो गई हैं, जबकि सड़क से गुजरते हुए ईद के कपड़े भी खराब हो गए हैं। इंतजामिया ने 2 रोज बाद भी निकासी के लिए अमली इकदामात नहीं किए। इतने परेशान है कि जब भी गुजरते कि मोटरसाइकिल अंदर बंद हो जाता है, बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठे हैं, लोग इतने परेशान है। टीएमए की कम से कम एक गाड़ी भी लग जाए तो इसका मसला हल हो सकता है, जिसकी वजह से टीएमए की 2 दिन से गाड़ी तक नहीं आई। शहरियों ने इंतजामिया से बारिशी पानी की फौरी निकासी के लिए अमली इकदामात करने की अपील की है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।